जॉय यीशु। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियों में मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वो अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वो स्वर्ग को नीचे झुककर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वो करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके बेग से उड़ा।
সকলকে জয় যিশু। জয় যিশু। সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতা অনুযায়ী পুরস্কার দিলেন। আমার হস্তের সুচিতা অনুযায়ী ফল দিলেন। কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলিয়াছি, দুষ্টতা পূর্বক আমার ঈশ্বরকে ছাড়ি নাই, কারণ তাহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল। আমি তাহার বিধি আমা হইতে দূর করি নাই, আর আমি তাহার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ ছিলাম। নিজ অপরাধ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম। তাই সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতা অনুসারে ফল দিলেন। তাহার সাক্ষাতে আমার হস্তে সুচিতানুসারে দিলেন। তুমি দয়াবানের সহিত সদয় ব্যবহার করিবে, সিদ্ধের সহিত সিদ্ধ ব্যবহার করিবে। তুমি সূচি সহিত সূচি ব্যবহার করিবে, কুটিলের সহিত চতুরতা ব্যবহার করিবে। কেননা তুমি দুঃখী দিগকে নিস্তার করিবে, কিন্তু গর্বিত নয়ন অবনত করিবে। তুমি আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া থাকো। সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর আমার অন্ধকার আলোকময় করেন। কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্য দলের বিরুদ্ধে দৌড়ি। আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি। তিনি ঈশ্বর, তাহার পথ সিদ্ধ। সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষা সিদ্ধ। তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢাল। আমেন। সকলকে জয়। সবাইকে জয় যিশু। জয় যিশু। কারণ সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বরকে আছেন। আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর শৈলকে আছেন। ঈশ্বর বল দিয়া আমার প্রতিবন্ধন করিয়াছেন। তিনি আমার পথ সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি আমার চরণ হরিণী চরণ বৎস করেন। আমার উচ্চস্থলে আমাকে সংস্থাপন করেন। তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন। তাই আমার বাহু তাম্রময় ধনুকের চড়া দেন। তুমি আমাকে নিজ পরিত্রাণ ঢাল দিয়াছ। তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করিয়াছে। তোমার কমলতা
শত্রুগণের পশ্চাতে দৌড়াবো, তাহাদিয়াকে ধরিব, সংহার না করিয়া ফিরিয়া আসিব না। আমি তাহাদিয়াকে চূর্ণ করিব, তাহারা আর উঠিতে পারিবে না। তাহারা আমার পদতলে পতিত হইবে, কারণ তুমি যুদ্ধস্থাতে বল দিয়া আমার কঠিন বন্ধন করিয়াছ। যাহারা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, তাহাদিওকে তুমি আমার অধীনে নত করিয়াছ। আমার শত্রুগণকে আগা হইতে ফিরিয়া দিয়াছ। আমেন। আমি আপন বিদোষীদিওকে সংহার করিয়াছি। আমেন। সকলকে জয় যিশু। স্বর্গীয় পিতা, তোমায় ধন্যবাদ দিই। আমরা এই পুলপিটে ওঠার যোগ্য নই পিতা, কিন্তু তুমি আমাদেরকে আজকে এই পুলপিটে দাঁড় করিয়েছো তোমার বাক্যকে বলার জন্য, যেন সেই বাক্য প্রত্যেকের হৃদয় গাথিত হয়। প্রভু, তুমি দয়া করো, তুমি দয়াবান ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ করি। তাহারা আর্তনাদ করিল, কিন্তু ত্রাণকর্তা কেউ নাই। সদাপ্রভুকে ডাকিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। তখন আমি তাহাদিগকে বায়ুচালিত গুলির ন্যায় চূর্ণ করিলাম, পথের কদর্পের ন্যায় ফেলিয়া দিলাম। তুমি আমাকে প্রজাদের দোষ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, জাতিগণে মস্তক রূপে নিযুক্ত করিয়াছ। আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে, শ্রবণ মাত্র তাহারা আমার আজ্ঞাকারী হইবে। বিজাতি সন্তানেরা আমার কর্তৃত্বে স্বীকার করিবে, বিচারিত সন্তানেরা মান হইবে। সকম্পে স্ব গুপ্তস্থান হইতে বাহিরে আসিবে। সদাপ্রভু জীবন্ত, আমার শৈল ধন্য হোক, আমার প্রাণেশ্বর ঈশ্বর উন্নত হোক। সেই ঈশ্বর আমার পক্ষে প্রতিশোধ দেন, জাতিগণকে আমার অধীনে দমন করে। তিনি আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার করেন। যাহারা আমার বিরুদ্ধে ওঠে, তুমি তাহাদের উপরে আমাকে উন্নত করিয়াছ, কিন্তু দুর্গত লোক হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়েছ। এই কারণ, হে সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব, তোমার নামে উদ্দেশ্যে স্তব গান করিব। তিনি আপন রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন, আপন অভিষিক্ত ব্যক্তি অতি দয়া করেন। যুগে যুগে দাউদ তাহার বংশের প্রতি দয়া করেন। আমেন।
शब्द परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वो देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को अपने पांव के नीचे कर देता है। वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के समांत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी के ढाले परमेश्वर के बस में है। वो तो सिरमनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर परमेश्वर का भजन का। आज हम लोग इस स्थान पे परमेश्वर को धन्यवाद करने आए। अध्याय 18 1 से लेकर 50 तक परमेश्वर ने कितने कार्य किए हैं, कैसे कैसे कि हमने सुना है। उनके श्वास के द्वारा, उनके बातों के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, दिखाया है कि मैं कौन हूं। इसीलिए हम परमेश्वर का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आज सच में हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट दिन है। 2024 खत्म होने में लगभग और 8 से 9 दिन 22 तारीख है, 9 दिन परमेश्वर ने आपको इतना दिन तक चलाया। छोटी बड़ी लहरें बहुत कुछ आपने देखी होंगी, परंतु फिर भी परमेश्वर क्या किया, आपको भवन में लेके आया। कितने सारे लोग पहली बार प्रभु यीशु मसीह को सुना होगा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना होगा। सच में मैंने कितने लोगों के बारे में सुना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह अलग है। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा, उनकी बातें, उनका काम करने का अंदाज क्या है, लोगों से अलग है। इसीलिए प्रभु को क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में वो फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कहता है, क्या कहता, अब्राहम को कठिनाइयों से उठा के उसको सबका पिता बना, मूसा को जंगलों से, पहाड़ों से, कितने जगह से जाने के बाद मूसा को व्यवस्था लिखने का परमिशन परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर उन्हीं को देता है जो परमेश्वर के साथ सदैव रहने के लिए तत्पर रहता है। आप कितने कमजोर है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बुद्धिमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कितना ज्ञान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक चीज जानता है, क्या जानता है, तेरा मन। যদি আপনার মন সত্যি চেঞ্জ হতে চায়, প্রভু কি করবে, নিজের কাজকে আপনার জীবনে प्रकट करेंगे। वो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए उस सब अपने आंखों को बंद करें, सर झुकाइए। प्रभु ने इस साल कुछ ना कुछ आपके जीवन में किया है, उसको याद कीजिए।
कभी आप बहुत बीमार में थे, कभी आपके घर की हालात बहुत खराब था, कभी आपके काम की जगह में ऐसा लग रहा था शायद ये काम मेरा नहीं होगा। कितने सालों का काम था, परंतु खुदा ने 2024 में कई बड़े बड़े कामों को दिखाया है। वो प्रभु आपको नहीं भूला है। आपके बेटे को, आपकी बेटी को न जाने कितने सारे एक्सीडेंट से बचाया होगा, कितने सारे चीजों को आपने देखा है, परंतु फिर भी खुदा आपको याद किया। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु हम एक चीज दे सकते हैं, परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं 2024 में जो भी था, मैं 2025 में वो नहीं बनना चाहता। मैं प्रभु आप में बनना चाहता हूं। अगर आपको लगता है 2024 में जो भी आपने किया है, मगर 2025 एक नया साल, एक नया अनुग्रह, एक नया वाचा परमेश्वर आपके साथ मानने जा रहा है। क्यों ना परमेश्वर को उस वायदे के लिए जो उसने हमारे बाप दादाओं से किया है स्वागत करें, धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा। प्रभु से एक चीज कहे, खुदा तुमने मेरे ऊपर बहुत आशीष की है, তুমি আমাকে অনেক আমার উপরে দয়া করেছো, আমি তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমি আর পাপের রাস্তায় ফিরব না। ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ করি। एक बार जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।